Hello students, welcome to biology class. Today we're going to talk about the skeletal connective tissue. Now skeletal connective tissue में दो tissue आएंगे. One will be the bone, another will be the cartilage. So there are two tissues actually. Which we're going to talk about. The first is the bone and second is the cartilage. Now there is a difference among the bone and the cartilage. So let's take first cartilage. Cartilage is basically a very uh, soft pliable. When I'm using word pliable, this means flexible, soft pliable structure, right? So this cartilage is present at a lot of places. For example, this nose is made up of cartilage, ear made up of cartilage. Here we have larynx made up of cartilage, and there is a union of the bones. One bone, let's say, um, this bone is known as humerus, and this bone is known as. There are two bones here. The one towards the thumb side is called as radius and one this side is called as ulna. So when these bones are joining, they are forming a joint. So at the surface of these bones from where they are joining, that joint, there will be presence of the cartilage on both the surface of the bone which is participating in the union. So cartilage is present at a lot of places, right, and having an important function. So this cartilage is soft structure, it's not a very hard structure. So this cartilage, there are types of cartilage we have. So this cartilage is basically divided into major two categories. Let's study three categories. The first category is said to be the hyaline cartilage. Second category is known as fibroelastic cartilage. And third category is known as white fibrous cartilage. So this is how we have three types of cartilage majorly present. So now when we talk about the cartilage, so there must be presence of the matrix. There must be presence of the cells. There must be presence of the fibers, right? So here the matrix is basically here the matrix is gel-like matrix, and the cells which we have here are termed as chondrocytes. The cells are termed as chondrocyte cartilage cells, and the fibers are two types of the fibers, white fiber and the yellow fiber. We have these type of the two fibers, right? So now when these are the three things we have here, three types of the cartilage we have here. So let's talk about the first point is the fibers. We have two options of the fibers. The first option is the yellow fiber or the white fibers, but this hyaline will have both the fibers but very few fibers. But fibroelastic will have the yellow fibers, and white fibrous cartilage will have the white fibers. Now the next point to be discussed here is the strength. So this
Hyaline cartilage is a cartilage with the firmness, but this fibroelastic is very flexible cartilage, but the white fibrous is a very strong cartilage. So where do we see these cartilages? At a lot of places. So when I'm talking about the hyaline cartilage, this is seen when the bones are uniting together. तो उसको हम बोलते हैं articular surface. The surface which unites to form the joint, that surface of the bone is known as articular surface. Then these fibroelastic present on the nose, ear, larynx, and white fibrous. This is present between the vertebra. एक वर्टिब्रा है, दूसरी वर्टिब्रा है. Let's say this is one vertebra and there is another vertebra. So in between these vertebra there is a disc coming, something like that. The disc is coming. That disc is known as intervertebral disc. So this disc is known as this disc is known as between vertebra, so vertebral disc, and these are referring to vertebra. बैकबोन में जो ब्लॉक्स हैं उसको हम वर्टिब्रा बोलेंगे. तो इन बिटवीन दी वर्टिब्रा, दैट इज बाय intervertebral disc, right? Then so this is how we can have the specific location of these cartilages, right? So this is much with the cartilage. Now next we talk about the bone. Before we go ahead with the bone, let's do a diagram of the bone, which is the largest bone of the body. Yes, you are correct. It's the femur, and I'm drawing femur here. So this is the diagram of the femur. We are taking one bone here. So this bone has the ends. ये जो दो हैं, ये दो पार्ट्स हैं, इसको हम ends बोलेंगे. ये हो जाएगा end. This will be referred as ends. This will be referred as ends as well. पर ये जो बीच में है, ये इतना, this will be referred as shaft of the bone, right? जॉइंट इस यहाँ पे जॉइंट बनेगा और जॉइंट यहाँ पे बनेगा, बीच का जो हो गया that will be termed as shaft, right? Now after this has one more layer present beneath this. Now that layer, basically there are four structures coming. So the first layer is called as peristomium. In between the peristomium, after the peristomium, there is matrix. Then this division is endosteum. And then at the end, there is presence of bone marrow. So the bone marrow is usually the red bone marrow which we have here throughout the
bone initially, but soon this red bone marrow gets replaced in between. जो यहाँ पे बीच का है एंड्स पे सिर्फ रेड रह जाएगा, और ये जो बीच का होगा बीच में हमें मिल जाएगा येलो बोन मैरो, इस तरीके से। तो ये जो अंदर है पूरा का पूरा, दिस इज रेफर टू बोन मैरो। तो चार चीजें आएंगी, पेरिस्टोमियम, मैट्रिक्स एंड एंडोस्टियम। एंडोस्टियम पार्टीशन है बोन मैरो और मैट्रिक्स के बीच में। पेरिस्टोमियम आउटर फाइब्रस लेयर है। तो मैट्रिक्स में हम लोगों को बेसिकली क्या मिलेगा, मैट्रिक्स में वी विल फाइंड सेल्स, हम लोगों को यहाँ पे सेल्स मिलेंगे। सेल्स जो मिलेंगे हम उसको बोलेंगे ओस्टियोसाइट। हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स जो होगा वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होगा, मेजरली कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, राइट। तो ये हम लोगों को चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा ना। अब इस बोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बोन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है दैट दिस इज दी हार्ड स्केलेटल टिश्यू। वो सॉफ्ट प्लायबल था, हार्ड स्केलेटल टिश्यू होगा ये। सो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो इसका जो मेजर काम है, फंक्शन जो आता है इसका, अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे। पहला फंक्शन हो जाएगा मूवमेंट, देन हम लोग जब इनहेल एक्सहेल करते हैं तो रिब्स मूव करती हैं, तो रेस्पिरेशन में भी ये काम करेगा। अटैचमेंट ऑफ मसल्स यहीं पे मिलेगी हमें। बोन मैरो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोगों को पता है बोन मैरो क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब हमारे बोन मैरो से ही निकलेंगे। तो ये कुछ लेयर्स हो जाएंगी हम लोगों की जो, और ऑस्टियोसाइट यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से बोन को कट कर रहे हैं और ट्रांसफर सेक्शन हम लोग देखेंगे बोन का। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बाहर वाला रीजन जो मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ ये हो गया पेरिस्टोमियम, और ये अंदर वाला रीजन जो ड्रॉ कर रही हूँ ये हो गया एंडोस्टियम। तो दिस लेयर इज रेफर टू एज पेरियोस्टियम, and this is referred to as एंडोस्टियम। और इधर की तरफ आ जाएगा बोन मैरो, राइट। बोन मैरो रहेगा इधर प्रेजेंट ना। इफ यू रिमेम्बर जो बोन मैरो था वो हमने इनिशियली रेड कलर का बनाया था, तो हम यहाँ पर भी बोन मैरो को अभी रेड कलर का बना रहे हैं। इनिशियली रेड होता है बट बीच वाला रिप्लेस हो जाएगा येलो से ना। नेक्स्ट चीज जो आती है हम लोगों को जो बात करनी है, क्या देखने को हमें मिलता है कि हम लोगों को ना वो मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था ऑस्टियोसाइट्स हमें मिलेंगे। तो जो ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे, एक चीज मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिर क्लियर हो जाएगा और आपको। जो ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे बेटा वो ना कुछ ऐसे होते हैं, उनकी ना प्रोजेक्शंस निकली हुई रहती हैं। नेक्स्ट हम जो डायग्राम लेंगे वो हम यहाँ से बेसिकली बोन को कट कर रहे हैं और इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन जो है डायग्राम का बोन का बेसिकली वो हम देखेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शन में जो मैं पार्ट लूंगी वो मैं बस इतना सा पार्ट लूंगी, मतलब आप पहली लेयर देखोगे, मैट्रिक्स देखोगे, एंडोस्टियम देखोगे और थोड़ा सा पार्ट बोन मैरो का लोगे। तो नेक्स्ट डायग्राम हमारी बाहर की लेयर हो गई पेरियोस्टियम, अंदर वाली लेयर हो गई हमारी एंडोस्टियम, बाहर वाली लेयर है पेरियोस्टियम, ठीक है। और अंदर वाली लेयर है
एंडोस्टियम। ठीक है, बीच में हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, दिस इज ऑफ मैट्रिक्स। और जो हमारा बोन मैरो आ रहा है वो इधर आ रहा है, बोन मैरो। तो लेट्स से ये जो हो गया हमारा, ये जो हो गया, ये हो गया बोन मैरो। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन। ना ये जो मैं करा रही हूँ इसमें ना एक क्वेश्चन आ सकता है, हेबर्जियन वर्ड एक बारी पूछ ले, तो वो समझाने की मैं बात कर रही हूँ। इधर क्या है हेबर्जियन, क्योंकि व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग यू इन ऑन इज जस्ट नो मेमोराइजेशन। तो इस तरीके से हमारे सेल्स आ रहे हैं। ये जो सेल्स हैं दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। क्या है ये, ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स और मतलब किस तरीके से आएंगे, इनकी ना प्रोजेक्शंस निकली रहेंगी कुछ इस तरीके से। तो एक दूसरे की जो प्रोजेक्शन है वो मिलेगी एक एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट के साथ। अगर आप देखें डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपस में एक दूसरे की प्रोजेक्शंस को मैं मिला रही हूँ। उनकी जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं ये आपस में मिल रही हैं। काइंड ऑफ एन यूनियन इनमें प्रेजेंट है with the help of these projections। तो ये प्रोजेक्शंस हर तरफ होती हैं। इस तरीके से मिलेंगी ये प्रोजेक्शंस। तो सेम वे में हमें यहाँ पे भी ये सेल्स मिल जाएंगे। और ये इस तरीके से मिलेंगे ये आपस में। बहुत क्लोजली प्रेजेंट होंगे ये सेल्स आपस में। अब क्या होता है, यहाँ पे एक हमें कैनाल सा मिलेगा। अब ये जो होते हैं इस कैनाल के भी आसपास मिलेंगे हमें। तो डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा पहले कनेक्शंस फॉर्म करते हैं। इसी ये बेसिकली ये जो मैंने सेल्स बनाए, दीज आर दी ऑस्टियोसाइट्स। यही मतलब एक अगर आप डायग्राम देखेंगे जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल रही है इन ऑस्टियोसाइट्स की। मतलब एक सीरीज में अरेंज है ये। तो अगर आप नोट कर रहे हैं डायग्राम में, तो यू कैन अप्रिशिएट 4 अरेंजमेंट बेसिकली हम लोगों को दिख रहे हैं।
तो ये जो है अरेंजमेंट इस तरीके से आएगा। इस तरीके से ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। तो 4 अरेंजमेंट आपको दिखेंगे अगर आप अप्रिशिएट करेंगे डायग्राम को। एक ये अरेंजमेंट है, एक ये अरेंजमेंट है, एंड देयर इज वन दिस अरेंजमेंट, एंड देयर इज वन दिस अरेंजमेंट, राइट। तो केनाल की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच में ये जो केनाल बनाई है, ये केनाल है हेवर्जियन केनाल। ये डायग्राम का एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है और उसमें भी ये केनाल मेंशन्ड है। तो ये जो केनाल है हेवर्जियन केनाल, इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स ट्रैवल करती हैं बोन के अंदर, राइट। सो दिस केनाल, और ये जो हेवर ये जो लेयर हम लोगों को मिल रहा है जस्ट सराउंडिंग दी हेवर्जियन केनाल, इस लेयर को हम बोलते हैं हेवर्जियन लेमेला। So please understand, this Haversian canal is very important. So this basically, this is found in the bone, number 1 point. Number 2 point, this carry the blood vessels, nerve supply, and lymph vessels, राइट। तो ये चीज आपको हेवर्जियन लेमेला भी नहीं पूछेगा ज्यादा, तो इस डायग्राम भी नहीं आएगा ये वाला बनाने के लिए कभी आपको। व्हाट यू हैव टू मेमोराइज इज दी हेवर्जियन केनाल किस टिश्यू में प्रेजेंट है और क्या उसका काम है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जिसके लिए इतना डिटेल दिया गया है। सो दिस बोन मैरो, तो यहाँ पे हम लोगों का फंक्शंस ऑफ द बोन क्लियर हो गए, हेवर्जियन केनाल बेसिकली क्लियर हो गया, एंड हाउ वी हैव द टू वेन्स एंड द शाफ्ट, किस तरीके से ये 4 लेयर्स आ रही हैं। द फर्स्ट इज द पेरियोस्टियम, फिर मैट्रिक्स, थर्ड एंडोस्टियम, एंड फोर्थ इज द बोन मैरो। So this we have done with the skeletal connective tissue. Thank you so much for today.